soft, luscious, delicious dinner rolls या फिर लादी पाव। इट्स मेड विथ होल व्हीट आटा। चपाती का जो आटा होता है उससे हमने ये रेसिपी बनाई है। इसमें बिल्कुल भी हमने मैदा या रिफाइंड फ्लावर का इस्तेमाल नहीं किया। एंड वी आर सर्विंग इट विथ ऑल टाइम फेवरेट मुंबई की चटपटी पाव भाजी। एंड इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, हमने इसमें बिल्कुल भी प्याज या लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया। इट्स अ नो अनियन गार्लिक रेसिपी। सो आफ्टर यू वॉच दिस लादी पाव रेसिपी, जस्ट हॉप ऑन टू जैन पाव भाजी जो हमने चैनल पर अपलोड कर दी है, so that you can enjoy this combination same like we did. And this video is going to be a little longer because we don't want to skip on any of the steps, so that when you try out this recipe आपको बिल्कुल वही रिजल्ट मिले जो हमको मिला हुआ है। So let's hop on to the video and please continue watching. This is 600 grams whole wheat flour. To that we are going to add 1 tablespoon of vital wheat gluten. Vital wheat gluten is added to enhance the texture, and since it's a whole wheat flour, it will help to rise our bread. And we are also going to add little bit of 1 teaspoon of cumin seeds and mix this up nicely. There you go. I'm going to keep this aside and going to take our another bowl. We're going to add 1.5 tablespoon of instant dry yeast or active dry yeast. I'm going to add jaggery powder to this so that yeast will feed upon this jaggery powder and glue. So that's why we are adding jaggery powder. We have replaced sugar with jaggery powder because it is a good substitute. And we are adding lukewarm water to it. We will also add a little bit of atta so that there is a food for yeast. Whisk it a bit like this. Just leave it for 1 to 2 minutes. Yeast has doubled in size. Now we are going to put this in our whole wheat atta mixture. We are using about 1 cup of buttermilk, but we are not going to pour this entirely into our dough. Let's see how much buttermilk is required. Add salt and mix it before adding instant dry yeast. Do not bring salt in direct contact with the yeast because that will again interfere with your fermentation process. So now we'll be adding this entire yeast mixture into our bowl. यहाँ पर हमने 1 कप जितना बटर मिल्क ज़रूर बनाया, लेकिन हम धीरे धीरे करके इसमें ऐड करेंगे. And after some time you will have to use your hands because उससे ही आपको आटे में कितना पानी डालना है वो समझ में आने वाला है. Now we are taking our buttermilk. बटरमिल्क ले रहे हैं हम, आप देख सकते हो 1/4 लीटर है, which is about 1 cup, and we are going to add this. And at this point we are going to knead it and see हमको कितना लगेगा बटरमिल्क ऑल. क्योंकि ये गेहूं का आटा है, इसमें ज़्यादा पानी लगता है. So we'll add more to it. मुझे लगता है ये पूरा 1 कप जितना पानी बटर मिल्क लगने वाला है इसमें. अच्छे से नीड करो, थोड़ा सा लूज रखना ज़रूरी है इसको. और थोड़ा, आप देख सकते हो 100 ml बचा है.
1 cup is required. अब ये बराबर है. At this point we are attaching it to the stand mixer. अगर आपके पास stand mixer नहीं है तो आप ये हाथ से भी गूंथ सकते हो. इसको almost 10 to 12 minutes तक आपको गूंथना है ताकि ये अच्छे से लाइट हो जाए आटा जो है वो, और उसमें खमीर बहुत अच्छे से घुल मिल जाए ताकि हमारा जो आटा है वो हल्का होगा, और जितना आटा हल्का होगा उतना ब्रेड आपका सॉफ्ट और स्पॉन्जी होगा. इसको अच्छे से, ये देखो, अच्छे से इसको रोल करना है. थोड़ा सा इस तरीके से रोल करके इसको इस तरीके से गीले कपड़े में ढक देना है, like this, in some warm spot. This will double up in size. Now it has risen. Look at this. जब हमने रखा तो इतना था, अब देखो इतना ये हो चुका है. 3 times rise हो चुका है. हमने जब इसको फर्मेंट करने के लिए रखा था तो इतना सा था, अब ये इतना हो चुका है, इतना बढ़ चुका है. राइट, अब इसको ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगे हैं. अच्छे से हमने इसको गूथा, उस वजह से हाफ एन आवर में ये हो गया. नहीं तो यूजुअली होल व्हीट आटा को 1 घंटे का तो टाइम लगता है, और अभी समर्स चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस वजह से ये अच्छे से राइज हो गया है. और एक इसकी टिप ये है कि इसमें हमने बटर मिल्क यूज़ किया है, तो वो और ईस्ट दोनों मिलके इसको बहुत ज़्यादा एरिएट कर देते हैं, विच यू कैन सी. Okay, now we are going to punch it back, okay, like this. And then ये घी है थोड़ा सा, तो ये घी हम यूज़ करेंगे और इसको वापस इस तरीके से किनारों से सेंटर में लाके ये हो गया. See, look at the aeration, you can see it's aerated, air bubbles, air pockets अच्छे से इसके बन गया. अब हम इसको इस पर ट्रांसफ़र करने वाले हैं. ऐसे स्प्रेड आउट करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ से आधा हम इसको कट कर रहे हैं, बिकॉज हमको ज़्यादा लादी पाव बनाने हैं इससे, इसीलिए ये हाफ अभी यहाँ पे हम रख रहे हैं. We are keeping this aside. Then we are going to take a baking tin like this and use clarified butter to grease it from all the sides. See? Spread it out. थोड़ा सा घी इस वक्त लगा लें हाथों पे, so that इवनली हम स्प्रेड कर सकते हैं. इसको स्प्रेड जो है वो हमारा जो टिन है, ये जो टिन है उसके हिसाब से हमको इसको स्प्रेड करना है, ताकि हमारे जो ब्रेड के जो डो है ना, ब्रेड के जो ब्रेड रोल्स हैं, मतलब लादी पाव है, वो इवनली आ जाए. दैट्स द रीज़न वाई वी आर स्प्रेडिंग इट आउट. एंड देन वी आर गोइंग टू कट इट विद द हेल्प ऑफ द कटर. तो ये रफली हमारे बेकिंग ट्रे के हिसाब से हो चुका है. सी, now we are going to cut it with the help of this cutter. इसको हाफ ऐसे कर दो, हाफ ऐसे कर दो, फिर इसको कट कर दो. right, then like this and like this. So now with the help of this, थोड़ा सा फिर से तेल लगा लेना और इसको ये देखो इस तरीके से roll it, pinch the bottom like this, right, and this.
from the sides as well, and again place it. इसको अब हम वॉश देंगे, मिल्क वॉश, और फिर इसको ढक के रखें। टेक घी, घर का घी, मिल्क पाउडर डालो 1 tablespoon. Add little bit of water as required. We are using about 2 to 3 tablespoon of water. ये पतला सा ऐसा हमें मिल्क जैसा, जिसमें हम घी इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि ब्राउनिंग जो है ब्रेड के ऊपर बहुत अच्छे से आएगी। मिल्क पाउडर में जो शुगर का कंटेंट होता है उसके वजह से भी मिल्क पाउडर और ये जो घी है वो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके ब्राउनिंग जो है ब्रेड की बहुत मस्त आती है। और फिर इसको हम कवर करके इस तरीके से वापस एक गर्म स्पॉट पे रखने। ब्रेड फर्मेंट हो चुके हैं, लादी पाव फर्मेंट हो चुके हैं। अब हम इसको बेक करने वाले हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर 40 मिनट्स, and we are going to wrap it in the aluminium foil and then Now let's get our oven ready for baking bread. इसके लिए हम एक बाउल में पानी ले रहे हैं और इसको लोअर जो ओवन की रैक होती है उसके नीचे रख रहे हैं, नीचे वाले हिस्से में रख रहे हैं। इससे स्टीम जनरेट होगी और जो स्टीम जनरेट होगी उस वजह से ब्रेड अंदर मॉइस्ट रहेगा, साथ ही साथ वो अच्छे से फूलेगा। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसी टेक्निक को कढ़ाई में यूज़ कर सकते हो या फिर कुकर में सीटी निकाल के, जैसे आप ढोकले को स्टीम करते हो उसी तरीके से इस ब्रेड को स्टीम बेक करना। आपका ब्रेड वैसे ही बनेगा जैसे अवन में बन के रेडी होगा। कढ़ाई में ब्रेड को कैसे बेक किया जाता है इसकी अगर आप डिटेल्ड रेसिपी जानना चाहते हो तो वो रेसिपी इस रेसिपी के पहले आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दी गई है, तो आप वो रेसिपी भी फॉलो कर सकते हो। वो फ्लैक्स सीड से बनाया हुआ ब्रेड है, वो रेसिपी भी हेल्दी रेसिपी ही है। Now back to this recipe. Let's continue baking our after laddu. preheating अब हम इसको विथ एल्यूमिनियम फॉइल ऊपर वाले रैक पर बेक करने के लिए रखने वाले हैं। आफ्टर 20 मिनट्स हमने जो फॉइल है वो निकाल दी है और अब ये ब्राउनिंग होगा। ब्रेड इज़ रेडी। अब हम इसको घी है, घी से इसको हम ग्रीस करने वाले। ये घी है, घी से अब हम इसको ग्रीस करेंगे ताकि ये नरम हो जाए। मेल्टेड घी ही लेना। आई एम यूजिंग घी नॉट बटर। एंड देन अगेन इसको पूरी तरीके से कूल डाउन होने देना। इसके पहले हम इसको फिर से ढक के रखेंगे, ताकि इसके अंदर की जो स्टीम है उससे ये और सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद इसको निकाल के डीमोल्ड करेंगे। अब हम इसको निकालेंगे और इसको डीमोल्ड करेंगे। Look at the sponginess. Sponge. Our whole wheat dinner rolls are ready to be enjoyed with Mumbai style Jain pav bhaji. It's made without onion and garlic, but it tastes same to same जुहू बीच की जो पाव भाजी होती है, जो स्ट्रीट फूड है मुंबई का, वैसी ही ये टेस्ट करेगी। सो जस्ट ट्राई आउट दैट रेसिपी। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे मेंशन कर दी है, आप वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हो। ये जो 2 ब्रेड लोव्स हैं ये हमने स्टीम बेक की है गैस के ऊपर। आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हो।
तो आप कोई भी शेप का एक बार आपका आटा रेडी हो गया तो आप कोई भी शेप का ब्रेड बना सकते हो. ईदर यू कैन मेक लादी पाव आउट ऑफ इट और एल्स यू कैन मेक दीज ब्रेड स्लाइसेस. और ये होममेड स्लाइसेस है तो आप मन चाहे जितना खा सकते हो. So until next time, enjoy cooking, enjoy eating, and thanks for watching.